اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین عن نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اہلاً و سہلاً سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے ویلکم، سب کے لیے الحمدللہ آپ سب نے اتنا جوائن کیے، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ دیکھیں یہ جو میسج تھا کتنے لوگوں تک پہنچا، لیکن کتنے لوگوں نے جوائن کیا اور آج حاضر بھی ہیں۔ کسی نے جوائن کیا ہوا ہے لیکن حاضر نہیں ہیں، تو آپ لوگ نارمل لوگ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا انسٹرکشن مجھے دینا تھا۔ ہمیشہ کلاس میں پنکچوئل رہیں، پنکچوئل ہونا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایک دن میں کلاس اٹینڈ کرتی ہوں، ایک دن میں غائب ہوتی، تو یہ نہیں چلے گا۔ اس کے لیے دیکھیں ہم جب دنیا کی اسٹڈی کر رہے تھے تب کتنا پنکچوئل ہوتے تھے، ایک دن بھی ہمارے مس ہوتی تھی تو ہم دوسروں سے جا کے پوچھتے تھے اچھا کلاس میں کیا ہوا تھا۔ ایون اگر ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ بھی لینے ہیں تو بھی کلاس کے ٹائمنگ کے حساب سے نہیں لیں، بلکہ کلاس کس ٹائم ہے تو دیکھیں اس ٹائم کے علاوہ میں کوئی اپوائنٹمنٹ لوں۔ یہ اکثر میرے اسٹوڈنٹ میں نے دیکھی کہ مجھے کہتے ہیں کہ آج میں نہیں کلاس اٹینڈ کر سکتی کیونکہ میرا ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے۔ پہلے خود سے کوشش کرے کہ ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ بھی اپنے کلاس کے ٹائم پر نہ رکھیں۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ امپاسبل ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے تو کوشش کریں۔ اور بھی ٹائم ہوتے ہیں، کلاس تو ہماری صرف 2 دن ہوگی نا۔ اور اگر بیمار ہے، ابھی ویسے بھی آن لائن کلاس چل رہی ہے تو کچھ مسئلہ ہے نہیں ہے انشاءاللہ۔ بہت زیادہ بیمار ہے وہ الگ بات ہے، لیکن تھوڑی سی سردی کھانسی ہو گئی، تھوڑا بخار آ گیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کلاس میں اٹینڈ کر رہی ہوں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بیمار ہو کچھ ہو، آپ کو کیا چل کے جانا نہیں ہے بلکہ یہ آن لائن کلاس چل رہی ہے۔ پھر کسی کی پارٹی میں جانا آج کل تو مشکل ہے، لیکن پھر بھی لوگ جاتے ہیں، تو پارٹی میں جانا ہے اس لیے میں آج کلاس نہیں اٹینڈ کر سکتی۔ یہ بھی ایک مجھے ہمیشہ یہ جو میرے ایکسپیرینس ہے وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ مجھے مارکیٹ بھی جانا ہے، ان کو صرف مارکیٹ یہی ٹائم مل گیا، کلاس کا ٹائم ہی دیکھ کے جانا تھا، کوئی اور ٹائم دیکھ لیتے یا کوئی اور ڈے دیکھ لیتے، اور کبھی کبھی اکثر سو جاتے ہیں۔ میں سو گئی تھی، بہت لیٹ سوئی رات کو تو سو گئی۔ تو یہی تو سننا کا طریقہ ہے کہ رات کو جلدی سویا کرے اور صبح جلدی اٹھا کر، اور فریش بھی رہیں گے۔ دوسری چیز، کبھی بھی کلاس کے دوران کوئی بیچ میں نہیں بولے، یکسوئی سے سنیں۔ جو بھی دیکھیں کوشچنس آپ کے دماغ میں آئیں گے، جب میں پڑھاؤں گی تو بہت سارے کوشچن دماغ میں گھومتے رہیں گے، تو کیا کرنا ہے، آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ کے ساتھ ایک نوٹ بک ساتھ رکھنی ہے، پینسل یا پین جو بھی ہے، اور اسی وقت اس کوشچن کو وہاں پر لکھنا ہے کہ میں اینڈ میں یہ کوشچن کروں گی۔ لیکن کلاس چلتے وقت بیچ میں ٹوکنا، بیچ میں ڈسٹرب کرنا ٹیچر کو، یہ نہیں چلے گا۔ یکسوئی سے سنیں کیونکہ دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ہماری کلاس اسی طرح فنش ہو جاتی ہے۔ تو یکسوئی سے سنائیں، بیچ میں بالکل بات نہیں کرنی، آپ کو چانس دیا جائے گا اینڈ میں، آپ کو جو پوچھنا ہے اینڈ میں پوچھیں، اور سارے کوشچن ہو سکتا ہے کسی کی ذہانت اتنی نہ ہو، وہ یہ سوچے کہ میں اینڈ تک بھول جاؤں گی کیا پوچھنا ہے، اس لیے ابھی پوچھ لیتی ہوں۔ اس لیے تو میں نے کہا کہ پین یا پینسل اور ایک پیپر یا بک رکھے، نوٹ بک رکھے، اور اس پہ وہ کوشچن لکھ دے جھٹ سے، اور وقت پہ آنا۔
ये पाबंदी अब ये किसी किसी के इशू है जो हिफ्स कर रहे हैं, उनके अलग बातें, उनसे मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करें कि वक्त की पाबंदी, वक्त पे आना, टाइम टू टाइम। हमारा टाइम भी लिमिटेड है, 11 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो टाइम पे आना, टाइम पे जाना। उसके बाद अब आप सोचेंगे कि ये तो ऑनलाइन क्लास है, तो हम चाहे वैसे बैठे, हम ऐसे ही सो के उठे, मुंह भी नहीं धोए और बैठे। नहीं, सफाई का भी ख्याल रखें, एज इफ ऐसे बैठे जैसे आप लाइव क्लास में बैठे ना, जैसे ऑन ग्राउंड क्लास में। इस तरह से सफाई का अपना ख्याल रखें, नहा धो के बैठे, ब्रश करके बैठे। वैसे भी अगर मिसवाक है तो मिसवाक करके बैठे, क्योंकि हम अल्लाह का कलाम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है कि जब हम अच्छे से पढ़ेंगे कुरान को, जब अच्छे से बंदा पढ़ता है तो जो फरिश्ते होते हैं वो भी खुश होते हैं, उसके मुंह को मुंह लगाते हैं। और अगर बदबू आती है उसके मुंह से, अब मैं तो नहीं देख रही या कोई और सूंघ नहीं रहा है आपके मुंह से बदबू आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन फरिश्ते तो हाजिर है ना, तो फरिश्ते गंदी बदबू से भाग जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो आप पीसफुल पढ़े और अच्छे से सीखे, तो इसका ख्याल भी रखे। ये नहीं सोचे ऑनलाइन है तो कैसे भी मैं नहाई नहीं, कुछ नहीं, कौन देखने वाला है, मेरा तो कैमरा ऑफ है, कोई नहीं देखेगा। और गंदी बदबू आ रही है बदन से, मुंह से बदबू आ रही है, तो ये नहीं, बल्कि साफ सफाई का ख्याल रखें और बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे बिल्कुल आप ऑन ग्राउंड में बैठे हुए। और ऐसी महफिलों में फरिश्ते घेरे हुए होते हैं। आपकी जो इम्पोर्टेंट दुआ है, ख़ास दुआ है, वो भी कभी कभी किया करें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बस दुआ करते रहे और फिर क्लास पे ध्यान ही ना हो। बीच में जो गैप होता है हमारा या क्वेश्चन आंसर होते हैं, उस वक्त दुआ करें, क्योंकि उस वक्त की दुआ कबूल होती है। फरिश्ते हर बार आमीन आमीन कहते हैं, फरिश्ते घेरे हुए होते हैं। इसकी एक हदीस आती है जिसका मफ़हूम ये है, जो अबू दाऊद में आती है, कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमाता है। सुभान अल्लाह। आप इल्म की तलाश में निकले, भले ही ऑनलाइन हो, ऑन ग्राउंड हो, जो भी हो, लेकिन आपके लिए जन्नत का रास्ता अल्लाह आसान कर देगा, क्योंकि अमल आ जाएगा ना। जब पढ़ेंगे तब अमल करेंगे ना। जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। और फरिश्ते जो है वो तालिब इल्म के इस अमल पर खुश होते हुए उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। अब सोचें कि आप पढ़ने बैठे हैं बिल्कुल यकसुई के साथ, ऑफ कोर्स, तो आपको पता होगा कि फरिश्तों के भी पर होते हैं, तो वो पर अपने बिछा देते हैं, वेलकम कर रहे हैं आप लोगों को। तो किस तरह कर रहे हैं, अल्लाह नोज बेस्ट। लेकिन आपके लिए खुश हैं वो, क्या आप दीन का इल्म सीखने आए। जितनी महफिलें आपने अटेंड की दुनिया की, उससे बेहतरीन महफिल दीन की महफिल है। और साहिब इल्म के लिए आसमान व ज़मीन के तमाम तर मखलूक़ात, हत्ता के मछलियाँ जो पानी की तह में हैं, वो बख्शिश तलब करती हैं। आप सोचें कि जितनी भी मखलूक है आसमान से लेके ज़मीन में, क्या आप गिन सकते हैं। आपको आदि तो पता भी नहीं है कि कौन सी मखलूक दुनिया में है। थोड़े दिन से मालूम होता है, अच्छा ये साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया और वो डिस्कवर किया। मछलियों में भी कितनी चीज़ें हैं, इवन आबी जानदार तो छोड़ो, हमने जो ज़मीन पे रहने वाले जानदार या ज़मीन की मखलूक को भी नहीं जाना है। आज भी याजूज माजूज है ना, किसने देखा है, किसको मालूम भी है कि वो कहाँ पर है। इतनी सारी मखलूक है दुनिया में, सारी के सारी जितनी भी आसमान में है, जितनी भी ज़मीन में है, सारी आपके लिए दुआएं कर रही है, कह रही अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, इन्हें बख्श दे। इवन मछलियाँ, कितनी मछलियाँ हैं हमारे ही समंदर में, देखिए कितनी मछलियाँ हैं। तो पूरे दुनिया के जो समंदर हैं उसमें कितनी मछलियाँ हैं, वो तक आपके लिए बख्शिश की दुआ कर रही है। जब आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, जब ये दीन का इल्म सीख रहे हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि चुने हुए लोग हो। ये सिर्फ चुने हुए लोगों को
اللہ तौफीक देता है और किसको तौफीक देगा, किसी को भी देगा। जिसके दिल में सच में दीन सीखने का एक जज्बा हो, वो गिड़गिड़ा के दुआ करे, अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे सही राह बता, मुझे इस्तकामत दे, बार बार दुआ करें। हम हर नमाज में दुआ करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे हिदायत दे। कौन सी हिदायत? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। हम हर दिन दुआ करते हैं, दिल से दुआ करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखना अल्लाह आसानी भी करते जाएगा। और कभी ये नहीं कहें कि ये मुझसे तो नहीं हो सकता, मेरी तो एज हो गई है। आपको पता है मेरी एक स्टूडेंट है 69 इयर्स ओल्ड है उनकी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अभी भी इतने अच्छे से डेडिकेटेड है वो। और वो मैं जो भी उनको होमवर्क देती हूँ वो बराबर वो टाइम टू टाइम करते हैं माशाल्लाह। इतनी उनकी ज़हानत नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करके याद भी करते हैं। जैसे कुरान की ट्रांसलेशन मैं उनको याद करने देती हूँ, सूरह फातिहा की, दूसरे सूरा की, तो माशाल्लाह वो भी याद करते हैं, रूट वर्ड निकालते हैं उसमें से। तो ये नहीं सोचे कि मेरी एज हो गई, सहाबा भी एजेड थे ना, तो फिर वो कैसे इल्म हासिल करते थे? अगर वो भी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस एक डेडिकेशन होना चाहिए। आप देखिए क्लास जब शुरू होती है ना तो बेशुमार स्टूडेंट रहते हैं, कभी कभी अबव 50 भी होते हैं, लेकिन एंड तक कोर्स फिनिश होने तक लास्ट में 4 या 5 बचते जो बहुत ही चुने हुए लोग होते हैं। क्यों उनको चुना हुआ ज़्यादा है? उनको क्यों अल्लाह चुनता है? क्योंकि वो डेडिकेटेड होते हैं, वो दुनिया को तरजीह नहीं देते बल्कि आखिरत को तरजीह देते हैं। तो ये हम में होना चाहिए। थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आई तो घर वाले भी शोरगुल करना शुरू करते हैं, या खुद हम भी, घर वालों से ज़्यादा हम, ज़रा कुछ यहाँ का वहाँ हो गया, खाना लेट पक गया, ओ मैंने क्लास बिना वजह अटेंड की, मेरा थोड़ा लेट हो गया, मेरा ध्यान नहीं है बच्चों में, मेरा ध्यान नहीं है घर पर। हालांकि ध्यान होना चाहिए उस घर की तरफ जो हमारा परमानेंट घर है, इस घर की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे। ये घर जितना लिमिटेड है ना, जितना देना है उतना दें। ये नहीं कह रही हूँ कि किसी हम बिल्कुल ध्यान न दें और कुछ करें ना, ये भी गलत है। हम उसको भी मेंटेन करें। मैं हमेशा कहती हूँ घर को भी मेंटेन करें, अपने घर वालों की भी खिदमत करें और साथ साथ अपना दीन का भी काम करें, क्योंकि वो भी हमारा फ़र्ज़ है। तो साथ साथ ये भी होना चाहिए कि हमें आखिरत के घर की फ़िक्र होनी चाहिए। वो घर बनाने की फ़िक्र करें कि मुझे वो अपना घर संवारना है, सजाना है, उसकी फ़िक्र करें और इस घर को भी मेंटेन रखें। अब ये नहीं होना चाहिए कि ये क्लास शुरू कर दिए तो फिर घर वाले भी भूखे पड़ गए और फिर होमवर्क आ गया, शोरगुल करना शुरू कर दे, वो बहुत ज़्यादा होमवर्क है, अब मैं तो बाद में ही काम करती हूँ। नहीं, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आप एक प्लान करें कि मुझे कितने बजे उठना है, क्या करना है, उस हिसाब से आप देखेंगे जो सुबह सोते नहीं ना नमाज के बाद, उनके घरों में बरकतें बहुत होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सुबह की दुआ भी दी हुई है ना आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सुबह में जो काम करेंगे उसमें बरकत है। अब हम क्या करते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते सो जाते हैं, तो बरकतें किस में आती हैं? पूरा दिन नींद का गलबा हमारे ऊपर रहता है। तो ये याद रखें, जो भी है आप प्लान करें, घर को भी आपको संभालना है और क्लास में भी आपको डेडिकेटेड रहना है। तो ये एक बात। फिर उसके बाद फ़ोन अपना साइलेंट रखिए, भले ही आप ऑन ग्राउंड कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हैं, फिर भी अपना फ़ोन साइलेंट रखना है। कोई अर्जेंट ही कॉल है, बहुत अर्जेंट है, तो फिर आप बात कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन क्लास में म्यूट करके ही, यहाँ का क्लास वैसे भी म्यूट ही रहता है, तो बगैर डिस्टर्बेंस के आप करें, लेकिन अर्जेंट है तो ही, वरना पहले ही सबको ये कर दे, बोल दे कि मैं क्लास में ये टाइम रहती हूँ, प्लीज़ आप बाद में मुझे कॉल करें, क्लास के वक्त नहीं करें। आपके पास दूसरे भी टाइमिंग है ना पूरे दिन में, तो ये क्लास का टाइम ही क्यों मिला? तो ये याद रखें कि फ़ोन पे नहीं रहें। मैं तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं मेरे पीछे। और
फिर क्लास अगर मिस होती है कभी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बिल्कुल आँख खुल ही नहीं रही, कुछ दवाइयाँ भी ऐसे होती है कि बिल्कुल आँख ही नहीं खुल रही है, बिल्कुल नींद का गलबा आ गया, अब क्लास ही छूट गई। तो आप सो के ही नहीं रहना है, बल्कि नेक्स्ट डे या उसी दिन किसी को कॉल करना है, अपने साथियों को, जो भी है। अभी ग्रुप में इतने सारे आपके साथी हैं, सब साथियाँ ही हैं, किसी को कॉल कर दे, मैसेज कर दे कि प्लीज़ मुझे बताएं, या ग्रुप में पूछे कि कोई मुझे बताए कि आज क्लास में क्या हुआ था, ताकि अगर कुछ होमवर्क है तो मैं पूरा कर सकूं। और उस स्टूडेंट से या जो भी आपके फ्रेंड है उससे पूछे कि प्लीज़ मुझे कुछ वक्त दे कि आप एक्सप्लेन करेंगी जो भी टीचर ने पढ़ाया था। तो इस तरह से एक दूसरे की दीन के कामों में मदद करें। तो ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए, और बहानेबाजी नहीं करें कोई भी। देखिए, जब हम दुनिया का काम करते हैं तो बहुत डेडिकेटेड होके करते हैं। अब कभी भी देखिए कुछ ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और या तो कुछ प्रॉब्लम्स, सही में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो हम कभी ये नहीं करते हैं कि आज का मैं खाना नहीं खाती हूँ, आज मैं लंच नहीं करती हूँ, डिनर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे इतने प्रॉब्लम्स हैं। ये कभी नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर करते हैं कि अच्छा आज इतने प्रॉब्लम है, आज मैं क्लास ही बंक कर देती हूँ। ये हो जाता है। तो क्लास के लिए आपको यानी कितनी इम्पोर्टेंस है, देखें कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब क्लास छोड़ेंगे ना, जब भी छोड़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट जाना है इसलिए क्लास छोड़े, यानी मार्केट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अल्लाह के कलाम से ज़्यादा। तो इसके प्लान होने चाहिए। जो बंदे मोमिन होता है ना, वो प्लान करता है, हमेशा प्लानिंग में रहें, हर चीज़ की प्लान होनी चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। टाइम मैनेजमेंट मस्ट हर एक स्टूडेंट के लिए, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर एक ने टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो इसकी एक प्लान करें कि कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और ये कोई मुश्किल नहीं, तजवीज़ का मुश्किल नहीं है कुछ, मैं कह रही हूँ, सिर्फ मुश्किल ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। तजवीज़ के लिए टीचर पे डिपेंड नहीं हुआ जा सकता, ये सब आपके ऊपर है। पहली बात तो दुआ करें अल्लाह से, और दूसरी बात, जितना खुद होके प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी तजवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये आपके एफ़र्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना एफ़र्ट लगा रहे हैं इस पे। तो ये सारी चीज़ें याद रखें कि आपने डेडिकेट होना है, बीच में ही छोड़ना नहीं है। ये कैसे हो गया, जैसे सूरह अल बकरा में आपने पढ़ा होगा, किसी ने जिसने ट्रांसलेशन तफसीर की है, कि जब अपने मतलब का काम रहा तो चलो निकले इनके साथ, मुसलमानों के साथ, और जब अपने मतलब की बात नहीं तो चले दूसरों के साथ बैठ गए। इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि डेडिकेशन होना चाहिए। यानी बुरे भी टाइम चल रहे, अच्छे भी टाइम चल रहे, तो भी चलते रहे, चलते रहे, एक दिन एंड होगा। अभी देखिए, मेरे पहले स्टूडेंट्स जो थे, पहले शुरुआत में पूरी क्लास भरी हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एंड में जो बच्चे हैं वो ओनली 4 स्टूडेंट, सिर्फ 4 स्टूडेंट बच्चे हैं। मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ तुम लोग चारों भी मेरे लिए इंशाल्लाह सदक़े जारिया वाले काम करेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी तजवीज़ अभी इतनी अच्छी हो रही है, क्योंकि डेडिकेशन है उनमें। उन्होंने क्लास इस तरह छोड़ नहीं दी है, डेडिकेट होते रहे। उनके भी ज़िंदगी में कई प्रॉब्लम्स आते रहें। तो कुवैत में भी मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिनसे मैंने लास्ट में फ़ीडबैक भी ली थी कि क्या हो गया था। मैंने कभी आपसे पूछा नहीं कि आपने जो क्लास अटेंड की मेरी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे, कुछ ऐसे। तो उन्होंने इतने सारे प्रॉब्लम्स उनके बताए कि मैं भी दंग हो गई कि इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उन्होंने क्लास अटेंड की। कुछ तो ऐसे इशू थे कि बहुत मुश्किल थे, लेकिन डेडिकेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप डेडिकेट रहेंगे, पहली बात 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, अल्लाह से दुआ करें और शुक्र करें अल्लाह का कि आपको अल्लाह ने इसके लिए चुना है। ये सबसे बेहतरीन मजलिसें हैं जो दीनी मजलिसें हैं और ऑथेंटिक मजलिसें हैं। किसी भी मजलिस के बारे में नहीं बात कर रही हूँ मैं। तो आप चुने हुए लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, आपने डेडिकेशन दिखाना होगा।
और आगे ये याद रखिए, सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है बल्कि पढ़ाना भी है। आप आगे के फ्यूचर टीचर्स हैं, आपने आगे काम करना है। याद रखिए ये दुनिया जो है ना, फानी दुनिया है। एक दिन मुझे भी आपको भी इस दुनिया से चले जाना है, बाकी क्या बचेगा? जो भी हमने अमाल किए थे सदक़े जारिया वाले, उसको कंटिन्यू हमको हमारे आखिरत में मिलते रहेगा, हमारे कब्र में वो हमारे लिए अजर मिलता रहेगा। तो वो ऐसे काम करके जाना है इस दुनिया से कि जो हमारे लिए सदक़े जारिया वाले। सारे आप लोग जितने भी यहाँ हैं, मैं चाहती हूँ कि हर एक कोई आगे बहुत ही अच्छा टीचर बने, स्कॉलर बने इंशाल्लाह। तो इसलिए डेडिकेशन दिखाना है आपने, और कोशिश भी करनी है, दुआ भी करनी है। दुआ के सिवा देखिए, अल्लाह अगर ना मदद करे तो कुछ नहीं हो सकता। हम कितनी भी कभी कभी एफर्ट करते हैं, लेकिन अगर दुआ नहीं करे तो फिर कभी कभी ये होता है कि उसके बावजूद कुछ नहीं होता। तो आगे अपने काम करते रहना है, दूसरों को भी सिखाना। आप जो भी इस क्लास में होगा, एटलीस्ट अपने घर वालों से वो डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल, आप घर वालों को ये बोलते नहीं बैठे कि चलो मैं आपको आके सिखाती हूँ, कोई नहीं सीखेगा। बोलेगा चलो अभी अभी शुरू की हूँ और अभी तक पता भी नहीं, और तुम क्या सिखाओगे? ऐसे हो सकता है दिमाग में आ जाए किसी के। तो इस तरह नहीं सिखाए, उसको बोले अच्छा मैं आपको एक बात शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ये सीखा तो मुझे अच्छा लगता है। या तो ये बोले कि मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं याद रखूँ। क्योंकि देखिए जब दूसरों को बंदा सिखाता है ना, तो वो ज़्यादा जहन में होता है, इंसान के याद ज़्यादा रखता है। जब सिर्फ आप पढ़ते रहें या लिखते रहे तो वो एक बेनिफिट है, लेकिन आप दूसरों को सिखाएं, आप नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। तो एटलीस्ट अपने ही बच्चों को, बच्चे नहीं तो अपने भाई बहनों को इस तरह से डिस्कस करें। बच्चों को तो आप सिखा सकते हो, तो ना नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगर छोटे हैं तो, बड़े तो थोड़े एरोगेंट हो जाते हैं, लेकिन वो भी एक तरीका होता है किस तरह सिखाना चाहिए, कि आप उनसे कहें कि आप मेरा सुनें। इस तरह से आप एक आइडियाज़ क्रिएट करके किस तरह से मैं अपनी फैमिली से शुरू करूं। सबसे पहले अपनी फैमिली से शुरू करें सिखाना। जब जो सीखा है उतना ही सिखाए, ये नहीं करे कि जो नहीं सीखा है वो सिखाने जाए। हो सकता है ऐसे भी लोग करते होंगे, तो क्या सिखाएंगे? इसलिए तो प्रॉब्लम सारे हमारे इसमें। जो सीख रहे वही सिखाएं, जितना सीख रहे उतना इनफ। पहले इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही इल्म आएगा। और जो सीखने वाला है ना, वो ना सीखने वाले के बराबर तो नहीं हो सकता ना। जो जिसको इल्म ही नहीं है और जिसके पास इल्म है, दोनों तो बराबर हो ही नहीं सकते। कुरान की भी आयत बताती है हमें, दोनों में डिफरेंस है। और सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई, वो क्या नाजिल हुई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो पढ़ो, क्या? इक़रा बिस्मि, नाम से, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब की जिसने तुमको पैदा किया। तो पहले हमारा काम क्या है? जब पहली आयत ही क्या आई है? पढ़ाई के लिए आई है, खाने पीने की बात नहीं हुई। हम क्या करते हैं, बच्चा पैदा होते ही चलो दूध दे दें। पहले हम सबसे पहले जो आयत आई है वो खाने पीने के बारे में नहीं आई, बल्कि पढ़ाई के बारे में आई है, दीनी तालीम के बारे में आई है। तो सबसे पहला हमारा काम पढ़ना है, बाद में पढ़ाना है। साथ साथ पढ़ाते रहे। ये नहीं सोचें कि मैं पूरा कोर्स करूँगी तब जाके मैं किसी को सिखाऊंगी, नहीं। जितना है पढ़ा है उतना। और कभी कभी पढ़ाते वक्त इतने क्वेश्चन लोग करते हैं, तो बोले नहीं मैं जितना पढ़ी हूँ ना उतना ही पढ़ाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। ये अच्छी बात है। ये नहीं सोचे कि अच्छा वो क्या बोलेगी कि इतना पढ़ी और तुम्हें इतना भी नहीं पता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम नहीं पता, हमने बोल दिए नहीं पता, इसमें शर्म नहीं करें। और तो ये जो हम बुक शुरू करने जा रहे हैं वो मेरी टीचर शहनाज कौसर की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहरीन से उनसे सीखा, और अभी भी ऑनलाइन वो मेरे साथ, मैं उनसे पूछते रहती हूँ अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो मैं जब बहरीन में थी तब शहनाज कौसर टीचर से मैंने पढ़ा हुआ है।
तो उनकी ही ये बुक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यही हमारा कोर्स होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत करके, जब हम पढ़ रहे थे उस वक़्त ये बुक बनी भी नहीं थी, बहुत सालों की बात है, बहुत पहले मैंने उनसे सीखा था। उस वक़्त उन्होंने ये बुक बनाई नहीं थी, बस अपने नोट्स बना के जो भी हम सीख रहे इसी तरह से उनके खुद अपने हाथों से नोट्स बनाए हुए थे। और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की मदद के ज़रिए फिर ये कोर्स का पूरा ने एक बुक बना दिया, और इंशाल्लाह आगे भी उनका ये इंटेंशन है कि इसको और ज़्यादा अच्छे से बनाएं, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कुछ गलतियां हुई हैं, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक्स कह लीजिए वो है, और कुछ चीज़ें यानी मिसिंग है, उन उसमें डाली हुई नहीं है। तो इसलिए वो अभी शुरू किए हैं या नहीं आई डोंट नो, लेकिन करने वाले थे नई बुक बनाने के लिए। तो जब तक वो नहीं बनती तब तक हम यही बुक इस्तेमाल करेंगे। उसमें उन्होंने इंशाल्लाह वो ज़्यादा और उसमें रूल्स डालेंगे, और प्लस जो भी गलतियां हैं उसको करेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये शहनाज टीचर पाकिस्तान से है, लेकिन उनका ने बहरीन, उनको बहरीनी ये मिल गया है, नेशनलिटी मिली हुई है, तो वो बहरीन में रहती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो भी मेहनत की अल्लाह उसे कबूल करें, आमीन। तो ये जो बुक है बुनियादी अहकाम तजवीद, तो इसको हम इंशाल्लाह यही जो कुछ आया है इसका मुताला करेंगे। तो इसमें जो उन्होंने कोर्स बनाया हुआ है उसको 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। पहला जो हिस्सा है वो जस्ट आप देखिए, पहला मरहला जो है वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा, और है भी इम्पोर्टेंट। 1 to 12 लेसन जो है वो पहला मरहला आएगा। इसमें आपको देखिए कि तजवीद की तारीफ़, ये जस्ट इसी तरह जैसे इंट्रोडक्शन होता है वो है, उसके बाद लहन वो भी इंट्रोडक्शन में आएगा। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेसन है यहाँ से सारे शुरू होते हैं वो है मखारिज, और फिर उसके बाद सिफ़ात, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मुफ़ख्ख़म मुरक्कक, मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ, पतले पढ़े जाने वाले हुरूफ, फिर नून साकिन और तनवीन के जो रूल्स हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर मीम साकिन के रूल्स आते वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर रॉ के अहकाम हैं, लाम के, मद के अहकाम, हमज़ा, वक्फ, ये जो 12 लेसन तक है वो हर एक को आना ही आना है, समझना ही समझना है। इसके बगैर आप कोई तजवीद मुकम्मल नहीं है। कुछ स्कॉलर कहते हैं जिसे मखारिज और नून साकिन एंड तनवीन के रूल्स आ गए उसको तजवीद आ गई, लेकिन बहरहाल हम उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो पहला मरहला है, मैं चाहती हूँ कि एक भी स्टूडेंट इसमें छुट्टी नहीं करे। अगर छुट्टी करता है तो बहुत यानी थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ख़ास तर से मखारिज का जो लेसन है उसमें आपने किसी भी हाल में छुट्टी करनी ही नहीं है। और ख़ास तर से जब हम हुरूफ़ हल्किया पे पहुँचते हैं ना, तो उसमें हो सकता है हम ज़्यादा क्लास लेंगे, क्योंकि हमारे हलक से निकलने वाले हुरूफ़ है ना, जैसे गौन, खौ, आइन और हा, हमज़ा, ये सारे जो हुरूफ़ हैं वो हमारे सही नहीं निकलते, क्योंकि हम उर्दू वाले हैं ना, वो अपनी लैंग्वेज है ना, तो हा और हा सेम पढ़ते हैं, हालांकि डिफरेंस होना चाहिए। तो अक्सर मेरी जो क्लास जितनी मैंने कराई वो थ्रोट हुरूफ हल्किया जो है, हलक से निकलने वाले हुरूफ, उसको एटलीस्ट 2, 3, 4 क्लासेस लगी ही लगी है। उसके लिए परेशान ना हो कि ये कोर्स कैसा पूरा होगा। हमें कोर्स पूरा करने की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, हमें फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारी तजवीज़ कैसी बेस्ट हो जाए, ये इस पे फोकस करें। और मखारिज और सिफ़ात ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए ये करना ज़रूरी है। ये बूढ़ा हो इंसान, बच्चा हो, जवान हो, जो भी हो, सभी को ये चीज़ आनी चाहिए, वरना आप देखेंगे कितना डिफरेंस हो के वो मतलब ही चेंज हो जाता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आगे आएगा हम पढ़ेंगे, जैसे फ़ाइव हैं उसको साइफ़ करें तो कितना डिफरेंस है। हाँ, स्वाइफ का मतलब क्या है?
और सैफ का मतलब क्या है? तलवार, और स्वाइफ का मतलब है गर्मी। तो कितना डिफरेंस हो गया। अब कल्ब है और कल्ब है, कल्ब यानी कुत्ता, कल्ब यानी दिल। तो कितना गलत ये होता है। मखरज अगर किसी का सही ना हो, सिफत सही ना हो, तो बहुत ज़्यादा गलतियां हो सकती है, और कभी कभी इतनी बड़ी होती है कि वो कभी शिर्क तक पहुंच सकती। तो इंटेंशनली अगर कोई करता है तो इस तरह से हमें पहले अपने मखारिज सुधारने हैं, फिर सिफ़ात पे बहुत कम लोगों का ध्यान होता है। हम अक्सर तजवीद की क्लास में मखारिज तो कर लेते हैं, ख़ा निकाले, ग़ाइन निकाले, लेकिन सिफ़ात का ख्याल नहीं करते। सिफ़ात भी ज़रूरी है, ये भी इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो ये हमारा पहला मरहला जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसमें किसी ने कोई छुट्टी नहीं करनी। वैसे पूरे कोर्स में छुट्टी नहीं करनी है, आप लोग स्पेशल लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं आप, तो उसका हक अदा करें। अब जो दूसरा मरहला है वो थोड़ा एडवांस आएगा उससे। उसमें क्या पढ़ेंगे कि इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह के अहकाम जो आए, हुक्म क्या कैसे शुरू करना है, बीच में किस तरह पढ़ना है, तो ये सारे। फिर मरातिब तिलावा, फास्ट पढ़ना, स्लो पढ़ना, वो सारे। फिर मद लाजिम के अक़साम, जो मद पढ़ेंगे उसमें भी मद लाजिम एडवांस में आएगा इंशाल्लाह। ये टर्म्स खाली दिमाग में डाले, टेंशन नहीं लगी, ये सब इजी है। अब आपको टर्म्स शायद पता नहीं होंगे, जिनकी तजवीद बिल्कुल जिन्होंने की ही नहीं, उनके लिए थोड़ा हो सकता है ये नाम लेके एकदम घबरा जाए, ऐसा नहीं करें, ये सब इजी है इंशाल्लाह आपके लिए। फिर उसके बाद हुरूफ मुक़त्तात, जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम, किस तरह कितना खींचना है, कहाँ गुन्ना करना है, वो पढ़ेंगे। फिर सिफ़ात लाज़िमा, ये बहुत ही थोड़ा लेंदी लेसन है, इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। फिर इदगाम मर्जिंग जो कहते हैं, मुदगम होना, उसका एडवांस में अलग आएगा, जो बेसिक है उसका अलग है और एडवांस का अलग है थोड़ा, तो वो भी पढ़ेंगे। फिर अलिफ के अहकाम है, फिर सख्ता है, ये सेकंड मरहले में आएंगे। अरे यहाँ से देखिए, लेसन नंबर 13 to 20 ये दूसरे मरहले में सीखेंगे। और जो तीसरा मरहला है, मरहला सुवम जो है, उसमें ओनली 21 to 25 लेसन है। वो है हमज़ा, इल्तिकाए हमज़तें, दो हमज़ा जब मिल जाते हैं तो क्या कानून आएगा। फिर हाय किनाया, इल्तिकाए साकिनें, वक्फ, फिर रवाया हफ्स नासिम रहमतुल्लाह अलैहिमा और उसकी खुसूसियत, तो ये सारे हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पहला मरहला है, जो हर एक को आना चाहिए। आप ये सारे टर्म्स सुन के टेंशन नहीं लें, सब इजी है, बहुत इजी है, बस डेडिकेशन दे रखें, इंशाल्लाह आपके लिए और अल्लाह आसान कर देगा, इंशाल्लाह देखना। और आप देखेंगे जब कोर्स शुरू करेंगे ना, और डेडिकेशन दिखाएंगे, होमवर्क करना शुरू करेंगे, आप खुद अगर कभी मिस होती है क्लास, आपको वो पसंद नहीं आएगा कि आपकी कोई क्लास मिस हो। चले अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन इसका। तजवीद की जो अहमियत है वो कुरान के रोशनी में क्या आई हुई है। तो यहाँ पर देखें, सूरह अल-बक़रा आया नंबर 121 में तजवीद के बारे में क्या बताया हुआ है। तजवीद के बारे में ये आता है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है वो इसे पढ़ते हैं जैसा कि उसके पढ़ने का हक है, वही लोग इस किताब पर ईमान रखते हैं। अब ये क्या बात आई हुई है कि जिन्हें किताब दी गई, किसको किताब दी गई? हम सबको किताब दी गई। कौन सी किताब दी गई? कुरान। कुरान जो दिया हुआ है उसको उस तरह ही पढ़ते हैं जिस तरह उसके पढ़ने का हक है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले कुरान उतारा किस पे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। किसने लेके आया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए। हाँ, अल्लाह की तरफ से लाए। तो जिस तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए उसी तरह से उन्होंने सुनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको उसी तरह सिखाया। तो उसी तरह हमें पढ़ना है, जैसे तजवीद के रूल्स है
मखारिज, सिफात, सारे रूल्स के साथ। अब हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत हो रहे हैं, ख़ास कर से रमज़ान जब आता है तो अक्सर लोग क्या बोलते हैं, मैंने ना इस रमज़ान में 3 बार कुरान पूरा की, मैंने 4 बार की। एक दूसरे से इस बारे में कॉम्पीट करते हैं कि मैंने कितनी बार पूरा की। हालाँकि इतने फास्ट पढ़ते हैं कि आधी तो आयत गायब ही होती है और क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा मालूम ही नहीं। हाँ, तो इस तरह से पढ़ना नहीं है, बल्कि जिस तरह इसका हक है, उसका हक क्या है आगे की भी आयत में आएगा, उसका हक अदा करो, उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, इस तरह से पढ़ो जिस तरह से वो उतारा गया है, इस तरह से पढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर हमारे एक से ज़्यादा बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चा बहुत स्लो पढ़ रहा है, एक बच्चा बहुत फास्ट पढ़ रहा है, तो हम उसकी तारीफ बहुत करते हैं, वाह देखिए मेरा वो बच्चा कितना फास्ट पढ़ता है, देखिए आधे घंटे में उसने पूरा एक सिपारा पूरा कर दिया, एक पारा हो गया उसका। लेकिन ये जो बच्चा है ना बहुत स्लो पढ़ता है, ये आधे घंटे में उसका पाव पारा भी नहीं पूरा हो रहा है, हम उसकी तारीफ करते हैं, हालांकि वो तकलीफ के साथ पढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा है, फिर भी हम उसको उसको बुरा बोल। हालांकि हम समझते हैं कि जो फास्ट पढ़ता है वो बहुत एक्सपर्ट इंसान है, इसलिए तो देखें जब तरावी होती है तो क्या करते हैं, ढूंढते हैं कौन सा मौलवी जो है वो फटाफट कुरान पूरा करेगा, और इतने फास्ट पढ़ते हैं कि अब सूर्य फातिहा ही समझ में नहीं आती, बस नस्तईन एक वर्ड समझा बीच में, इहदिना समझा, बाकी का क्या पढ़ा मालूम नहीं, बीच में सब मिक्सअप हो गया। ये तरीका नहीं है। अगर आपसे आप मेरे पास बात करें, कभी मुझे कॉल करें या मुझसे कभी मिले और आप मेरे पास इस तरह बात करें तो मुझे क्या बुरा नहीं लगेगा कि आप इतने फास्ट बोल रहे हो, ज़रा स्लो बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और खुद आपको भी बुरा लगेगा अगर आपसे कोई बोले हाँ बहुत आप कैसे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अच्छा हम फिर मिलते हैं और फिर चले गए। नहीं, बदतमीज़ ही, जैसे हम कहते हैं बदतमीज़ हैं, क्या बात करने का सलीका तरीका है क्या नहीं है, तो इस तरह से हम बोलते हैं। लेकिन वही अगर हम अल्लाह से बात कर रहे हैं तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि बिल्कुल हम पसंद नहीं करेंगे कोई हमारे साथ इस तरह से बात करे। तो रही बात यही कि बात करने का सलीका तरीका आना चाहिए। कुरान पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम जब कुरान पढ़ते हैं इसका मतलब है अल्लाह हमसे बात कर रहा है। नमाज पढ़ते हैं हम अल्लाह से बात करें, तो इस तरह से हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ के और बिल्कुल तजवीद के रूल से पढ़ना है, क्योंकि उसका हक दे के पढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। वरना क्या होता है नमाजों में भी आप देखें, नमाज कितनी फास्ट है, 2 मिनट की नमाज, क्या पढ़े सब पढ़े, पूरे रकाते पूरे किया हमने, अरे कितने पढ़े, सब पढ़े, सुन्नत भी पढ़े फर्ज भी पढ़े, 2 मिनट में कैसा हो गया तुम्हारा। पूरा हम बहुत फास्ट पढ़ते हैं ना कि रात बहुत फास्ट करते हैं हम, बहुत सुपर फास्ट स्पीड है हमारी। तो ये क्या तरीका अल्लाह से बात करने का, सीधे से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो। किस तरह से करो, जिस तरह आप किसी से अदब के साथ खड़े रहते हैं, और अल्लाह के पास अदब और ज़्यादा होना चाहिए बनिस्बत हमारे पेरेंट्स के, बनिस्बत और दूसरे बड़ों के। कैसे हम बात करेंगे, अगर आपके दादा परदादा उनके पास आप बात करें या ख़ास कर से आपके वालिद के पास बात करें, कितने रिस्पेक्ट से बात करते हैं। और आजकल वैसे बदतमीज़ी हो रही है बच्चों में, लेकिन कितने रिस्पेक्ट से बात करेंगे, थोड़ा डर के करेंगे, रिस्पेक्ट दिखाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। जिसको ज़्यादा आप रिस्पेक्ट देते हो उससे सोचे कि आप कितनी यानी बहुत सहम के बात करते हैं। लेकिन वही अल्लाह के पास जब बात करने की बात आती है तो किस तरह से रूडली बात करते हैं। तो इसका ख्याल रखें कि आपको उस तरह से पढ़ना है कुरान जिस तरह से नाजिल हुआ है, उसका हक दे के पढ़े। वही ईमान वाले हैं, क्या आ गया है, वही लोग इस किताब पे ईमान लाए। फिर आगे आता है औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व क़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। यहाँ पर सूरह इसरा आया नंबर 106 में आया है। अब मैं पूरी तजवीद के साथ खींच के नहीं पढ़ी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और हम जब रिसाइटेशन करेंगे उस वक्त हम प्रॉपर तजवीद के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें, कुरान करीम को हमने थोड़ा थोड़ा करके
اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے۔ سورہ اسراء جو آیا نمبر 106 میں آیا ہے، اس کا کیا ہے مطلب کہ قرآن جو ہے وہ ایک دن میں نہیں نازل ہوا ہے، 23 ایئرس لگے پورا قرآن نازل ہوتے ہوتے، اور یہ ایک ساتھ یعنی جیسے کچھ سورہ جو تھے وہ ایک ساتھ نازل ہوئے، جیسے سورہ الفاتحہ جو ہے وہ ایک ساتھ ساری آیتیں نازل ہوئی اس کی، ایسے کچھ سورہ ہے جو ایک ساتھ نازل ہوئی، لیکن کچھ سورہ ایسے جو کچھ آیت اب نازل ہوئی کچھ بعد میں نازل ہوئی، تو آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بتدریج آہستہ آہستہ نازل ہوئی، تو اس کو پڑھنے کا بھی طریقہ آہستہ آہستہ ہونا چاہیے، سوچ سوچ کے سمجھ سمجھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ ہی پڑھتے تھے تو کتنا ٹھہرتے تھے پھر پڑھتے تھے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو اس کے بیچ میں رکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا تو ہر آیت کے بعد اللہ جواب دے رہے ہیں اس کا، اور ہم کس طرح پڑھتے ہیں، ہمارا روٹین کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بھجن پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے جس طرح قرآن نازل فرمایا اس طرح پڑھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، تھوڑا ٹائم لگائے۔ ہم کو کیا لگتا ہے نماز، ہم کیا بولتے ہیں، ہم فٹافٹ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ فٹافٹ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، ذرا خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ اب پہلا اسٹیج یہ ہے کہ تجوید صحیح کریں، آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھیں، یہ آپ کی پہلی اسٹیپ ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے اس کی میننگ سمجھنی ہے، اس کی تفسیر سمجھنی ہے، آگے آگے جاتے رہے جب تک ہمارے جان کنی کا وقت نہیں آتا، تب تک ہم اسٹوڈنٹ ہی ہیں۔ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں اسٹوڈنٹ بن کے رہنا ہے۔ یہ نہیں سوچے کہ اچھا میں بہت سیکھی، میں نے تو ایم اے کیا ہوا ہے، اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کیا ہوا ہے، میں نے اجازہ لیا ہوا ہے۔ نہیں، ابھی بھی میں بھی کہتی ہوں میں بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک اسٹوڈنٹ بن کے رہوں گی۔ ہر ایک کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی عالم نہیں ہے۔ ہم نے علامہ اور عالمہ کا جو ٹائٹل لگایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بہت ایگزاجریشن ہے، کوئی عالمہ نہیں، سب اسٹوڈنٹ ہیں ہم۔ تو یاد رکھیں، ہم پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں جو قرآن ہے پراپرلی پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ ہم دوسرے جب کام کرتے دنیا کی چیز کرتے، ایون کھانا بناتے وقت، اچھا وہ مسالہ اچھے سے فرائی کر کے لینا تب خوشبو اچھی آئے گی، کتنا ٹائم لگاتے ہیں اس کو مسالہ بھوننے میں، اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن نماز قرآن پڑھنے کی بات آئی تو فٹافٹ نماز ہو رہی ہے، تو اس میں کیوں نہیں ٹائم لگاتے ہیں؟ اس میں ٹائم لگائے۔ ہم دوسرے کاموں میں بنا وجہ فالتو ٹائم پاس کر رہے ہیں، اس میں کتنا ٹائم لگے گا اگر لگائیں تو؟ 2 منٹ زیادہ، 3 منٹ زیادہ، کتنا لگنے والا ہے؟ ویسے بھی جو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں ان کو اور ہم کو کمپیئر کریں تو کتنا ٹائم میں فرق دکھے گا؟ میکسیمم 15 منٹس پکڑے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے، سورہ فرقان آیہ نمبر 32 میں ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اتارا۔ یہ ایک آیت ہے، اب آگے کی بھی آیت پہلے پڑھ لیں پھر بعد میں آگے دیکھتے ہیں۔ سورہ المزمل میں آیہ نمبر 4 میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس میں بھی اس طرح سے آیا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو ترتیل کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہاں پر قول نقل کیا گیا، لیکن یہ صحیح ثابت نہیں ہے، یعنی یہ قول علی رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں، پھر بھی یہاں پر آیا ہوا ہے، اس لیے بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ کہ ترتیل کا جب کسی نے مطلب پوچھا کہ ترتیل کیا ہے،
تو حروف کی تجوید کے ساتھ ادائیگی یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقوف کی معرفت. وقوف یعنی کہاں پر اسٹاپ کرنا ہے, کہاں پر نہیں کرنا ہے, کہاں کیے تو بالکل میننگ چینج ہوتی ہے اور نہیں کیے تو میننگ چینج ہوتی ہے, وہ ساری معرفت کا نام ترتیل ہے. تو یہ لیکن یہ صحیح قول نہیں ہے, پھر بھی مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ ترتیل کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک تو ایک تجوید کے ساتھ پڑھنا اور کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے, وہ ساری معرفت ہونی چاہیے, پہچان ہونی چاہیے. تو اللہ نے کیا کہا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. اللہ خود کہہ رہے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, اور ہم کیا کر رہے ہیں جو ٹھہر کے پڑھا ہے بولتے بہت سلو ہے, یہ ایکسپرٹ نہیں ہے قرآن میں, جو فاسٹ پڑھا ہے بہت ایکسپرٹ ہے. ہم الٹی بات کر رہے ہیں. حالانکہ انکریج ان کو کرنا چاہیے جو بہت زیادہ مطلب ٹھہر کے سمجھ کے, کیوں کیونکہ جو ترتیل جو ہوتی ہے وہ پیچھے مطلب سمجھ کے پیچھے جا جا کے پڑھ رہا ہے, وہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے. آپ جو تجوید کی اہمیت حدیثوں میں جو آئی ہوئی ہے وہ کچھ یہاں پر نقل کی ہوئی ہے. تو اس میں دیکھیں یہ بہت فیمس ہے, آپ کو بھی یہ شاید سبھی کو پتہ بھی ہوگا یہ جو حدیث کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دیکھیں پہلی کیا بات آئی ہوئی, کون بہتر ہے؟ جو پہلے سیکھے, پہلے سکھانے کی کوشش نہیں کرے, پہلے خود سیکھے, ایک اگر لیسن پہ سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے. تو پہلے سیکھنے کا پروسیجر ہوتا ہے, بعد میں سکھانے کا. ورنہ ہوتا کیا ہے آج کل جو ہمارے یہاں چل رہا ہے, سیکھے بغیر سکھانا شروع کر دیتے, اور پھر جتنی بدعتیں شروع ہو گئی, شرک شروع ہو گیا, وہ کہاں سے ہوا؟ یہ ساری چیزیں ہونے سے, کیونکہ علم صحیح معلوم ہی نہیں. جیسے بولتے ہیں نا, ایک ڈائلاگ بھی ہمارے یہاں کہ نیم حکیم خطرے جان. آدھا جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ جان کا خطرہ ہوتا ہے, اس سے آدھا ڈاکٹر نہیں بنے, پورے ڈاکٹر بنے تب جا کے کسی کا علاج کرے. تو پہلے سیکھے پھر سکھائے. آپ اگر بہتر بننا چاہتے ہیں, تم میں سے بہتر ہو ہے, اب کون نہیں چاہتا کہ ہم سب سے بہترین انسان بنیں؟ تو یہ دو کام کرنے ہوں گے. آج سے ہی آپ ٹھان دیں کہ آج میں جو پڑھی ہوں آج ہی میں کسی اور سے شیئر کروں تاکہ میں بہتر انسان بنوں, کیونکہ قرآن سیکھنے کے ساتھ سکھانا ہے مجھے. تو سیکھے بھی اور سکھائے بھی آخری سانس تک. ایون بڑے سے بڑی ڈگریاں بھی لے اسلامک اسٹڈیز میں, پھر بھی سیکھنے کا پروسیجر نہیں ختم ہونا چاہیے, اور کبھی بھی تکبر نہیں کریں. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھے, دو چیز اسٹوڈنٹ کی لائف میں اگر آئے نا وہ کبھی نہیں پڑھ پائے گا, کبھی سیکھ نہیں سکے گا. ایک ہے تکبر کہ مجھے سب آتا ہے, میں تو بہت تم سے زیادہ سیکھی ہوئی ہوں. یہ ایک تکبر جو آگے بڑھنے نہیں دیتا. دوسری چیز اسٹوڈنٹ میں نہیں ہونی چاہیے جو رکاوٹ ہوتی ہے, وہ ہے شرم. شرم کرتا انسان کہ میں کیسے ٹیچر سے پوچھوں, گروپ میں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, دوسری کلاس میٹ ہیں, تو وہ میری رشتہ دار ہیں, میری فرینڈ ہے, وہ کیا بولے گی کہ دیکھو اس کو یہ بھی نہیں آتا. تو یہ جو شرم ہوتی ہے نا اور جو تکبر ہوتا ہے, یہ انسان کے علم کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان کبھی سیکھ نہیں پاتا. تو یہ دو چیزیں اگر ہیں ہم میں تو وہ نکال دیں. یہ دو چیزیں بہت ڈینجرس چیز ہے, تکبر نکالیں اور دوسری چیز شرم نکالیں. شرم اس چیز سے نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمیں الف با بھی نہیں پڑھنے آ رہا ہے تو بھی پوچھے, کہ یہ بہت اچھی چیز ہوگی جو آپ پوچھیں گے. ایک امام سے کسی نے اتنے سارے کوشچن کیا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ان امام کا نام, لیکن انہوں نے سارے کوشچن جب کیے گئے تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم, اور کچھ ہی آنسر انہوں نے دیے تھے. تو یہ کوئی یعنی اس طرح سے ذلت کی بات نہیں ہے, بلکہ عزت کی بات ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تو نہیں کہہ دیا. آپ نے خود ہو کے کچھ فتوے نہیں دیے, خود ہو کے کچھ نہیں سکھایا. تو یہ دو چیزیں طالب علم کوئی بھی ہو, بڑا ہو بوڑھا ہو, جوان ہو بچہ ہو, کوئی بھی یہ چیز نہ رکھے اپنے اندر.
تو یہ بخاری کی روایت میں تھا۔ پھر آگے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ یہ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ تو قرآن کی تلاوت ہر دن کرنی چاہیے کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ سفارش کرے گا ہماری کہ اللہ اسے بخش دے، اس کو معاف کر دے کیونکہ یہ مجھے پڑھتا تھا یا پڑھتی تھی۔ تو یہ سفارشی بن کے آئے گا۔ ایون ہم جب قبر میں بھی رہیں گے، جس وقت ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، نہ ہمارے ماں باپ ہوں گے، نہ ہمارے دوست احباب ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، اس وقت ہم تنہائی میں ہوں گے تو ہمیں دوست کی ضرورت ہوگی۔ تو دوست کون ہوگا؟ ہمارے نیک اعمال ہوگے، خوبصورت شکل دی جائے گی، انسان پوچھے گا کہ تم کون ہو، بہت خوبصورت چہرے والے دکھ رہے ہو، تو کہے گا میں تو جو قرآن پڑھتا تھا وہ قرآن ہوں، تو جو نماز پڑھتا تھا وہ نماز ہوں میں، تو ہمارے جو بھی اعمال ہیں، جو صدقے دیتا تھا وہ صدقہ ہوں۔ تو یہ سارے اعمال خوبصورت شکل میں ہمارے دوست بن کے وہاں ہوں گے جب ہم تنہائی میں رہیں گے، پھر بھی تنہائی محسوس نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ہماری سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، تو اس کو پڑھا کرے، اور قیامت کے دن بھی وہ سفارش کرے گا اللہ اس کو بخش دے، یہ راتوں کو اٹھ کر مجھے پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، تو یہ سفارشی بن کے آئیں گے۔ اس کے بعد متفق علیہ ہیں، اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وهو علیہ شاق له اجران۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے جبکہ وہ اس میں مہارت بھی رکھنے والا ہے، ایکسپرٹ ہے، وہ نیکوکار معزز لکھنے والے یعنی فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی بہت ایکسپرٹ ہے، یعنی کیا فاسٹ فاسٹ پڑھنے والا نہیں، بلکہ تجوید کے ساتھ اس کے مخارج صفات بہت ایکسپرٹ ہے، یا بہت اچھے سے قرآن کو پڑھتا ہے، تو وہ جو شخص ہوگا وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا آخرت میں، معزز لوگوں کے ساتھ، یعنی فرشتے جو نیکوکار معزز لکھنے والے ہیں، اعمال لکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے جبکہ وہ اس میں اٹکتا ہے، جیسے اس کو بسم اللہ بھی پڑھنے کہا گیا، بسم اللہ یعنی بالکل اٹک رہا ہے، تو بھی وہ دیکھیں اجر سے نامحروم نہیں ہے، بلکہ اس سے کیا کہا گیا ہے، یعنی قرآن پڑھنا جو اٹک رہا ہے، قرآن پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، بہت محنت کر رہا ہے، فٹ کر رہا ہے، پھر بھی اٹک رہا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے، یعنی ڈبل اجر ملے گا اس کو، کیونکہ ایک تو کوشش بھی کر رہا ہے، اٹکنے کے باوجود چھوڑ نہیں رہا ہے کہ مجھے نہیں آتا میں چھوڑ دے رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اس کو اٹک کے بھی اس نے ایفرٹ لگائی ہوئی، اس لیے اس کو ڈبل اجر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹک کے ہی بیٹھ جائے، بلکہ کوشش کرے کہ تجوید اچھی بنے، کیونکہ ہمیں فرشتوں میں بھی شامل ہونا ہے، فرشتوں کے ساتھ رہے، تو ان لوگوں میں وہ نیکوکار معزز لکھنے والوں کے ساتھ ہوگا، تو اس کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی بھی دیکھیں محروم نہیں ہوگا، جو بھی پڑھ رہا ہے اٹک کے پڑھا ہو یا بہت ایکسپرٹ ماہر بھی ہے تو بھی وہ محروم نہیں ہے اجر سے۔ پھر یہاں پر دیکھیے بہکے اور زرین میں آیا ہوا یہ، لیکن حدیث ضعیف ہے، پھر بھی دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے، اقرأوا القرآن بلحون العربی واصواتها، قرآن کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو۔ تو یہاں پر جو یہ جو حدیث آئی ہوئی ہے وہ ضعیف حدیث ہے، تو پھر بھی ہمیں اس طرح یہ یاد رکھیں، ہمیں اس طرح پڑھنا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اوکے، تو اس طرح سے ہی ہمیں پڑھنا ہے۔ ویسے بھی
7 احرف کہتے ہیں نا، 7 احرف آتے ہیں، اس طرح سے ہمیں بتایا گیا کہ اس طرح سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. تو اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک ہی پیٹرن پہ پڑھے، حفظ ناصم کے حساب سے، تو ہم وہی فالو کریں گے. اور جو ہمارا پورا کورس ہوگا ہم ایک ہی اس سے پڑھیں گے، حفظ ناصم. ہم 6 کیٹیگری جو ہے، 7 کیٹیگری میں سے 7 احرف بولتے ہیں، احرف، الف، ہا، را، واو، فا. تو اس میں سے صرف ایک ہی ہم اس پہ فوکس کریں گے، کیونکہ پورے ورلڈ میں جو ہے نا اسی طرح سے پڑھا جا رہا ہے. کچھ افریقن کنٹری ہے جس میں کچھ اور طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے، تو وہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بھی پڑھا ہے. لیکن اب لوگوں کو کنفیوز نہیں کریں، آپ حفظ ناصم کے حساب سے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ہی ہم کنٹینیو رکھیں گے. تو یہ ہمارا آج انٹروڈکشن تھا. انشاءاللہ ہم پہلا مرحلہ نیکسٹ کلاس سے اسٹارٹ کریں گے. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان.